घर में फ़ॉर्मूला हमेशा आता था। तो उसमें से ही शोड मी दिस एड। रात को हम जब ऑफिस से आए, अपने क्लिनिक से वापस आए, तो खाना खाने से पहले ही केम, मॉम इज़ दीदी 5'8", या इज शी प्रिटी, वाइट, इज शी 17, या व्हाई डोंट यू सेंड हर फॉर दिस। हमने कहा क्यों, यार, ये क्या हो, घर से निकालने के लिए? हाँ, उसका मकसद वो था। जॉइनिंग फिल्म वाज नॉट इन हर प्लान ऑफ एक्शन। शी वांटेड टू स्टडी, शी इज वेरी गुड इन स्टडीज। बहुत मुश्किल से प्रियंका कन्विंस हुई और अनहैपीली उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। अच्छा, she didn't want to do films. नो नो नो, उसके एजेंडा में ही नहीं था। So how are you, bridging the gap of, modern parenting and being the traditional grandmother? वो तो एक हार्ट से होता है, एक दिमाग से होता है। तो हार्ट से गलती हो जाती है, दिमाग से सही हो जाता है। Welcome to the Debina Banerjee Show. Namaste and welcome to the Debina Banerjee Show. Joining me today is Dr. Madhu Chopra, an army doctor, a successful entrepreneur, and the proud mother of Priyanka Chopra. She is a woman of discipline, wisdom, and quiet strength who raised her daughter to dream big while staying deeply rooted in values. Let's hear her incredible journey of motherhood, medicine, and everything in between. Welcome to the Devina Banerjee Show, ma'am. I'm so thrilled to have you here. Thank you for having me. It's a pleasure. I've heard you earlier and I followed you also. I think you're a very inspiring girl, and thank you for having me here. थैंक यू सो मच. आपको देख के जितने बार मैं मिली हूँ, मैंने हर बार बोला कि आपको देख के मुझे मेरी माँ याद आती है. जिस तरीके से आप सब कुछ हैंडल करते हो, मुझे बिल्कुल, मतलब मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी माँ हैं. और मैं चाहती हूँ कि मेरी माँ जैसे भी जो लोग हैं ना, वो भी ये सारी बातें सुने. एंड क्योंकि आई थिंक एट दिस एज, जब आप 20s में थे, आप बहुत बिजी थे, हैड अ हसलिंग करियर, और धीरे 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 जब पोता पोती हो जाते तो लगता है कि हाँ, इट्स माई टाइम टू रिलैक्स, बट इट्स नॉट रियली रियली टू रिलैक्स. ऐसी वाली चीज़ें हम आज आपसे सुनना चाहेंगे. ज़रूर ज़रूर. सो वेयर डिड यू स्टार्ट? आई वॉन्ट टू लिसन फ्रॉम यू. वैसे मैंने सोचा था मैं बोलूँगी दैट यू आर अ ट्रेन्ड ENT स्पेशलिस्ट एट AFMC Pune. Yeah. And how did that whole thing start? And I just want to listen from the start. So you want to know how I started my career, or you want to Yeah, know? you started your career first. See, I finished my studies in Jamshedpur as a medical doctor, MBBS, and then I got my first job in Bareilly, where I met my husband, future husband. We got married, and he was in the army. तो जब वो आर्मी में थे, we kept moving around, so I could not pursue my own career. तो बड़ा difficult होता था to set up or get a job and then 2 years tata bye bye and go. But I decided कि I wanted to specialize, I wanted to study more. तो army had a, उस समय एक project था उनका where civilians could study in the armed forces medical college, and but the condition was they had to join the services for at least short service 5 years. That was the condition. So I did that. I did my ENT. It was wonderful, and I think that was my best choice, best decision to join the services. So it was wonderful being a doctor in the army. You spoke to me in Bengali अभी थोड़ी देर पहले, तो it's because of the Jamshedpur connection. Yes. और तो परिष्कार बोलती जानी ना, but I can still have a fairly good conversation in Bengali. I understand it fully. I used to read and write. I was secretary of the Bangla Association in my college. I used to do Rabindra Sangeet and Rabindranath. Everything I used to do. I used to read Rabindranath's literature. It was only because of him that I studied Bangla. তো একটা রবীন্দ্রসঙ্গীত হয়ে যায়. এই মনিহার আমায় নাহি সাজে. That's all I know for now. My voice is not. If I wish you told me, I would have learned a couple of lines. This he wrote after he was nominated for Nobel Prize. In fact, he won it. I said, no, this is not for me. It doesn't suit me. Such beautiful lines. Beautiful, actually. এ মনিহার আমায় নাহি নাহি সাজে, সাজে। একে ফেলতে গেলে লাগে, Yeah. একে
तुलते गेले बाधे. I also do not remember all the lines properly because Rabindranath it's an it's an encyclopedia in himself. You I, get s- all the emotions. I spent so much time in Shantiniketan. Just, I wanted to lose myself there. That's so beautiful. Bangla literature, I think, is one of the best after Urdu, or maybe as good as Urdu. So you're born in Jamshedpur. Yeah, born and brought up there. Okay. So My father worked with Tatas. He was a doctor too. He was mhm. working in the Tata hospital. So we all grew up there. Okay. So there's a doctor connection all over. Yeah, lots of doctors in the family. And then you suddenly switch to cosmetology. So when and why did that switch happen? After I finished my service, last 5 years, I went into private practice. But I chose a very backward area in Bareilly to start my practice because there was a kind of seva bhav, I think, in my head. I thought कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो बहुत जहाँ बीमारी बहुत ज़्यादा है वहीं डॉक्टर का होना ज़रूरी है. ये नहीं कि तो पेशेंट को ले लेके आप भागें. तो आई हैड माई प्रैक्टिस इन अ वेरी backward area. So I had a roaring practice, a wonderful practice there. And during that time, I was doing family practice mostly. And I went and trained in fertility because that was a big issue over there. So I did all that. And then when Priyanka won Miss World, she had to relocate to Bombay. So Chopra and I sat down and discussed कि अकेले तो भेज नहीं सकते, 17-year-old, such a sheltered upbringing. And we were not mentally ready कि ये जीतेगी भी तो after that what? ये हम लोग ने plan ही नहीं था. And we were both so comfortable in our practice कि we never thought of anything other than that. फिर जब ये जीत के इनको बॉम्बे आना ही था, then we decided कि हमारा तो करियर पीछे गया, प्रियंका का फ्यूचर है, तो we have to support her. अगर नहीं होता तो she can always go back to studies. Nothing stopping her, and we can always continue with our practice. As doctors, you're less insecure कि जॉब मिलेगा कि नहीं, काम होगा कि नहीं, पैसे कमा सकते कि नहीं, वो इनसिक्योरिटी नहीं थी हम लोग. So I came, Chopra stayed back, and then Chopra came, I stayed back. ऐसे उसकी ट्रेनिंग के दौरान हम लोग वही करें. And one thing led to another, and we moved to Bombay. बॉम्बे आए तो उसका भी एक लंबाई स्टोरी कैसे कॉस्मेटोलॉजी में आ गई. प्रियंका was shooting for दोस्ताना in Florida. तो मैं उनके साथ जाती थी. 2-2.5 महीने का शूट था वहाँ. तो my sister who's a doctor in Florida, she's a neurophysician, she sent me a flyer कि तुम यहाँ टाइम क्यों वेस्ट कर रही हो, मतलब प्रियंका के साथ बैठ ही रही हो ना, तो go and enroll in this courses and पढ़ाई कर लो इसको, जब तक 3 महीने का है तो आप 2-3 कोर्सेज कर लो. तो just for time pass, I went in, did the first course, I loved it. Did the second course, beautiful. Third course, then I told my husband कि expensive courses हैं. तो he said कर क्या रही जो इतने डॉलर्स मंगवा रही हूँ यहाँ से to pay the fees. And I said नहीं, this is what we should do in Bombay. उस समय बॉम्बे में इतना प्रचलित नहीं था. थिंग वॉज स्टिल इनसाइड द क्लॉजेट. लोग बोलते भी नहीं थे, ओपनली आते नहीं थे प्रैक्टिस पे. तो इसे दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू इन बॉम्बे. So as always, he has always been very supportive. Jumped in. He went and took all the surgical training all over the world. Italy, US, Israel, Colombia. He did all the surgical training and साथ I did all the non-surgical training. We came back, picked out a place which is very secluded, which gave privacy to the clients also. Had lots of parking space. Small, but loved it. Started. That's how I got into cosmetology. It was all given to where the destiny is leading you. I had no plans. तो इट्स मोर लाइक बैठे बैठे समय बर्बाद क्यों करें, तो हाँ, कुछ नया वहीं सीख लेते हैं. वहीं से शुरू हुआ. मेरा सीखने का एक हंगर बहुत है. मैं अभी तक पढ़ रही हूँ. अभी तक आई एम लर्निंग. I travel, I join up some course. Now I'm doing stem cells because I think that's the treatment of the future. I'm studying that. तो ये स्टडीज़ कभी ज़ाया नहीं जाता. कुछ भी पढ़ लो.
कभी वेस्ट नहीं होता, कहीं ना कहीं लाइफ में उसका इस्तेमाल हो ही जाता है। वेरी वेरी ट्रू, वेरी वेरी ट्रू। एंड हाउ ब्यूटिफुल। आपने ये बोला कि प्रियंका अब मिस इंडिया जीत चुकी थी एंड ऑल, बट आपने उससे पहले ये भी बोला दैट यू आर प्रैक्टिसिंग इन अ वेरी बैकवर्ड प्लेस इन बरेली। तो हाउ डिड दैट होल थिंग हैपन? जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि वो कुछ करना चाहते हैं लेकिन माँ बाप सपोर्ट नहीं करते हैं एंड ऑल। what were you made of? I want to know. और were you like regular parents जिन लोगों ने सोचा कि चलो जाते हैं, मतलब what was there in the mind? Because behind a successful daughter are great parents, हैज़ so I टू बी। want to know that side of it. मैं जैसे मैंने कहा, इट वॉज जैसे इत्तेफाक। नो प्लान्स कि वो जीत ही जाएगी, तो बहुत दूर तक हमने सोचा नहीं था। पर ये भी सोचा था कि लाखों लड़कियों में ऐसा अपॉर्चुनिटी कितने को आता है, 100 गर्ल्स मैक्स टू मैक्स। Hmm. तो 100 लाखों में से 100 में एक ये हुई सिलेक्ट फॉर द प्रीलिम्स। तो वाई डिड हर दिस अपॉर्चुनिटी। द प्रीलिम्स तक भी, मतलब यू हाँ, मैं वही पूछ रही हूँ कि ये दिस इज़ अ फील्ड कि सारे माँ बाप ही सबसे पहले डरते हैं, तो सपोर्ट इतना आता नहीं है। तो हाउ डिड दैट होल थिंग कम इनटू योर वो माइंड भी कि इत्तेफाक था। प्रियंका हैड जस्ट रिटर्न फ्रॉम द यूएस, वो अपना हाई स्कूल वहाँ कर रही थी। वहाँ से इंडिया आई तो सीधा बॉस्टन टू बरेली। तो ट्रांजिशन बहुत ही एकदम झटके से लगा उसको। बट जैसे डक टेक्स टू वाटर, पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। तो शी डिडंट माइंड, वी पुट हर इनटू द आर्मी स्कूल, वन कॉन्वेंट, so she was doing very well. तो बेटा मेरा उस समय 7-8 साल का था। उसके रूम को, प्रियंका को उसका रूम दे दिया गया था, एंड उसके लिए साइड में अनेक्सी जैसा छोटा सा कमरा निकाल दिया। तो ही वॉज वेरी अपसेट अबाउट बीइंग uprooted from his room and he wanted दीदी आउट। तो कभी फेमिना, ये सब मैगजीन्स पढ़ती नहीं हो, मेरे घर में फेमिना हमेशा आता था। तो उसमें से ही शोड मी दिस एड। रात को हम जब ऑफिस से आए, अपने क्लिनिक से वापस आए, तो खाना खाने से पहले ही केम, मॉम इज़ दीदी 5'8", या इज शी प्रिटी क्वाइट, इज शी 17, या तो व्हाई डोंट यू सेंड हर फॉर दिस। तो हमने कहा क्यों, यार, ये क्या हो, घर से निकालने के लिए? हाँ, उसका मकसद वो था। तो जस्ट टू शट हिम अप, जो लंबे वाले रजिस्टर होते हैं लाइन वाले, उसका एक पेज निकाला, फाड़ा, उसमें से लॉन्ग हैंड में जो भी एप्लीकेशन डालना था डाले। फिर फ़ोटोज़ भी ग्रुप, उसके फुल लेंथ नहीं थे फ़ोटोज़। फुल, एक कोई पार्टी में गई थी अपने बच्चों के, उसमें फुल लेंथ था, उसको काट के फुल लेंथ फ़ोटो निकाला। एंड देन शी हैड टेकन सम स्टूडियो सॉफ्ट फोकस फ़ोटोज़ फॉर हर, शी वांटेड टू स्टडी अब्रॉड, तो उसकी ट्रेनिंग के लिए उसने फ़ोटोज़ लिए हुए थे, वो सब भेज दिया, यूँ वाला ऐसे। जो एनीवे, 1.5-2 महीने के बाद वहाँ से कॉल आ गया, Hmm. एंड शी ओनली पिक्ड अप द फ़ोन जब कॉल आया। तो शी वाज़ क्वाइट लाइक शॉक्ड कि हाउ डज़ फेमिना नो दैट आई लिव इन बरेली। सो दैट वाज़ इट। फिर वहाँ से शुरू हो गया। डैड को भी यही बोला गया कि ऐसी अपॉर्चुनिटी कितनों को आता है, लाखों लड़कियों में से। सब, कितनी लड़कियों की ये ख्वाहिश होगी कि ब्यूटी इंडस्ट्री में जाएं, फैशन इंडस्ट्री में जाएं, पर इनको चांस मिला है, तो वाई डोंट वी लेट हर एटलीस्ट ट्राई इट। पढ़ाई कहीं नहीं गया। इफ़ शी विन्स फाइन, नहीं विन करती तो कॉलेज है ही, शी कैन गो टू स्टडीज़। बस ये उसको कंफर्ट था प्रियंका को हमेशा, कि देयर इज़ ऑलवेज अ प्लान बी, देयर इज़ ऑलवेज एन ऑप्शन, Hmm. इट्स नो डू एंड डाई फॉर एनीथिंग। So that's why she had that confidence and she could walk forward without fear. मैं समझती, हम as parents, that is what we give her. Our contribution to her life was live without fear, live with confidence, live with dignity. मेरी समझ में इससे ज़्यादा बच्चे को कोई कुछ दे ही नहीं सकता। बाकी वही बनते हैं जैसा हालात उनको बनाता है, circumstances, opportunities. Parents can only give you these 2-3 things. एंड ऑल्सो डू यू थिंक, मतलब चिल्ड्रन दे फेयर बेटर जब उनको पता होता है कि माँ बाप साथ है? बहुत बहुत फिर सारा, आप चिंता मुक्त हो गए ना। आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके पीछे हैं, दे आर योर सेफ स्पेस। तो काहे का डर। मैं समझती हूँ, इफ़ अ चाइल्ड इज़ कंफर्टेबल नोइंग दैट आई डोंट हैव टू फाइट द वर्ल्ड बिकॉज माई पेरेंट्स आर देयर प्रोटेक्टिंग मी एंड दे वुड फाइट फॉर मी, तो काम में 100% फोकस।
विच इज़ अगेन व्हाट आई से, चाइल्ड चाहे कुछ भी अपना डायरेक्शन लेना चाहे, पेरेंट्स को उसमें सपोर्ट ज़रूर करना चाहिए। थोड़ी दूर जाके अपने आप समझ आ जाएगा ये मेरा नहीं है काम, तो चेंज करने दो। आजकल तो ऑप्शंस अनलिमिटेड है। आई थिंक फॉर अ चाइल्ड थिंग शुड बी डू और डाई। यू फेल वंस, ट्राई समथिंग एल्स, फेल ट्वाइस, ट्राई समथिंग एल्स। ज़िंदगी पड़ी हुई है ट्राई करने को। एंड व्हाट अबाउट अब बच्चे के लिए खुद को रीलोकेट करना, ये कितना डिफ़िकल्ट? ये बहुत बड़ा डिसीजन था। थोड़ा हम लोग को थोड़ा वक्त भी लगा। वन बाय वन हम किए। पहले वो आ गए, चोपड़ा आ गए। जब तक मैं चलाती थी, बिकॉज यू हैव टू फंड हर स्टे हियर, समबडी हैज़ टू अर्न द मनी। जब चोपड़ा को यहाँ लीलावती में जॉब मिल गया, देन आई स्टार्टेड बाइंडिंग अप कि चलो सिक्योरिटी हो गई यहाँ बॉम्बे में भी। एंड यू लिव विद योर ओन डिग्निटी, इज्जत के साथ आप रह रहे हैं। इफ़ यू हैव योर ओन सोर्स ऑफ फाइनेंस फंडिंग, देन आई मूव्ड। और वो भी बहुत तकलीफ़ हुआ था मूव करते समय। एक एक पेशेंट को हैंड ओवर करना, किसी को एक एक आइटम करके क्लोज़ करना अपना हॉस्पिटल, जहाँ हमने 11 इयर्स लगाए थे। स्क्रैच से स्टार्ट किया टिल यू बिकेम वन ऑफ द टॉप डॉक्टर्स देयर इन दैट सिटी। फ्रेंड्स को छोड़ना, अपना सिक्योर होम को छोड़ना, ये सब बहुत बड़े डिसीजंस थे। और बॉम्बे वाज अ प्लेस दैट इज़ लाइक अ कुआं और लाइक अ समंदर। यू कम इन, इफ़ यू डोंट नो हाउ टू स्विम, यू आर लॉस्ट। कंप्लीटली। लेकिन जो मैं ये एक्चुअली और अच्छे से जानना चाहती हूँ कि देयर आर मैनी पीपल आउट हियर जिनके पेरेंट्स दूसरे शहर में रहते हैं, वो खुद यहाँ पे पहुँच जाते हैं, लेकिन पेरेंट्स को कन्विंस करके बॉम्बे लेके आना इवन आफ्टर दे हैव बिकम सक्सेसफुल, वो भी कितना डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट टू ट्रस्ट एंड स्टार्टिंग में ही, इनिशियल डेज में ही सब कुछ छोड़ के आना बच्चे को, हम डू यू थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट ऑल द पेरेंट्स शुड डू, और व्हाट इज़ द थिंग दैट दे देखो, शुड डू? मोस्ट पेरेंट्स आर खुददार। बिकॉज ऑफ देयर खुददारी दे हैव टू मेक अ चॉइस। मैं घर पे रहूँ और यू डू व्हाट यू हैव टू डू, बट वी आर देयर विद यू। और दूसरा है कि मुझे पता है हम तुम्हें भेड़ियों के बीच भेज रहे हैं या हम तुम्हें डिफ़िकल्ट स्पेस में भेज रहे हैं, तो इट डजेंट मैटर हम क्या कर रहे हैं, बट आई एम विद यू। उसका थर्ड भी एक है, जो अपना सब कुछ ऐसे छोड़ देते हैं कि दे बिकम डिपेंडेंट ऑन द चाइल्ड। तो मैं थर्ड से राज़ी नहीं हूँ। अनलेस आप इन्फर्म हो, आपका लाइफ पॉसिबल नहीं है फॉर यू टू, और यू अनएजुकेटेड, कुछ ऐसे हालात हो, देन ऑफ कोर्स इट्स अ चाइल्ड्स ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ द पेरेंट्स, दैट्स बिसाइड्स। बट फॉर अ पेरेंट टू रीलोकेट बहुत बड़ा डिसीजन है, कि वी वर गोइंग इनटू द अननोन। जॉब मिलेगा कि नहीं, प्रियंका सक्सेसफुल होगी कि नहीं, हम अपनी सिक्योर सेफ्टी को छोड़कर एकदम ब्लाइंडली चले आए थे। पर ओनली आफ्टर वी हैड हैड दिस डिस्कशन कि प्रियंका का फ्यूचर आगे है। हम लोग अपनी लाइफ जी लिए, हम लोग का बहुत बढ़िया प्रैक्टिस था, वी हैव इनफ सेविंग्स, वी कैन हैंडल इट टू गिव हर अ शॉट एट हर करियर, जो वो चूज़ कर रही है। एंड हाउ अबाउट योर सन? सन भी थोड़े दिन अमेरिका हम छोड़ आए थे उनको, बिकॉज वी वर वेरी शेकी हुए हियर। ही स्टेड विद माई फैमिली इन द US। फिर उनको जब हम लोग थोड़े और स्टेबल हो गए, देन वी ब्रॉट हिम बैक। तो फॉर हिम ऑल्सो इट वॉज वेरी हार्ड। मानिक जी कूपर में मराठी पढ़ना, हिंदी पढ़ना, ये सब उसको बहुत डिफ़िकल्ट होता था। बट एंड प्लस वो, आई वॉज ऑलवेज विद प्रियंका बिकॉज दैट वॉज अ कंडीशन पुट ऑन मी बाय माई ब्रदर इन लॉ, कि उसको एक मिनट भी नहीं छोड़ोगी तो वो जाएगी बॉम्बे। So I had no choice. I had no practice, no work. I was with her because that I thought was my more important a duty to keep her happy and safe. तो सिद्धार्थ थोड़ा निगलेक्ट तो हुआ ही था, बट ही मैंड अप, ही मेड इट सो वेल। अपने आप से अपना कॉलेज का एडमिशन्स करा लिया, सिलेक्शन हो गया, स्विट्ज़रलैंड चला गया, पढ़ाई भी कर लिया। तो ही मैंड अप बिकॉज ऑफ ऑल दैट। ये भी बहुत अच्छी बात हुई। He was not dependent on either of us.
और बहुत पेरेंट्स सोचते हैं सपोर्ट करना मतलब एक लड़की को सपोर्ट करना मतलब उसकी शादी के लिए पैसे साइड करके रखना। आई एम टॉकिंग इट फ्रॉम पीपल दैट फ्रॉम हैव हर्ड अराउंड या कि रूरल एरियाज वहाँ या तो ये अभी भी है। इवन इन बिग सिटीज़ मतलब सोचो बिगेस्ट बेटी सिटीज कहीं बड़ा कुछ करने जाना मतलब बड़ा इन द सेंस एक अपना चॉइस। अनकन्वेंशनल कुछ करने जाना चाह रहे हैं, आप खुद की चॉइस के हिसाब से कुछ करना चाहते, बट द पेरेंट्स आर मोर inclined टू कीप द मनी असाइड फॉर मैरिज, कि शादी हो जाए बस, मतलब ये सब तो होते रहेगा। सो हाउ हाउ इम्पोर्टेंट डू यू थिंक कि इट इज़ इन टूडेज एज एंड हम भी वही कितना? पेरेंट्स थे, हम भी वही पेरेंट्स थे, दोनों बच्चों के बर्थ से ही हमने रेकरिंग डिपॉजिट शुरू कर दिया था। हर महीना, हर साल किया था कि प्रियंका की शादी होगी और सिद्धार्थ को पढ़ाई में ज़रूरत पड़ेगी, दोनों का। तो जब टाइम आया तो सिद्धार्थ को पढ़ाई के लिए ज़रूरत थी स्विट्ज़रलैंड जाने के लिए, फटाफट निकल आया, भेज दिया। और प्रियंका को हम लोग रीलोकेट कर रहे थे। इट वाज अ बिग एक्सपेंस गेटिंग अ हाउस हियर, मेकिंग हर सिक्योर, उसके क्लोथ्स खरीदना, उसको ट्रैवल कराना, ये वो सब बहुत था एक्सपेंसिव। हालांकि चोपड़ा वाज वर्किंग, आई वाज वर्किंग, पर दिस हेल्प्ड। You have an army background, you and your husband. So how do you think कि वो बच्चों के परवरिश में कुछ अलग तरीके से they were brought up being in army? हाँ, आर्मी में एक प्रोटेक्शन रहता है, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी रहती है। यू आर ऑलवेज सराउंडेड बाई पीपल यू आर फेमिलियर विद। एन एनवायरनमेंट, आप किसी स्टेशन चले जाएं, एनवायरनमेंट चेंज नहीं होता है, हायरार्की वही रहती है, घर वैसा ही रहता है, लोग वैसे ही रहते हैं। सबसे अच्छी चीज़ जो आर्मी में रहने का होता है कि बच्चे डिसिप्लिन सीखते हैं, डिसिप्लिन सीखते हैं, पंक्चुअलिटी सीखते हैं, रिस्पेक्ट से बात करना सीखते हैं, तमीज़ तहज़ीब जो अभी लोग भूल रहे हैं, वो सब आर्मी में सिखाया जाता है। यू कैन नॉट बी रूड टू अ सीनियर पर्सन एट ऑल, उनका अपना तरीका है आपको डिसिप्लिन करने का। एंड देन यू सी योर peers, योर फ्रेंड्स, योर नेबर्स, योर सीनियर्स, एवरीबडी बिहेविंग अ सर्टन कल्चर्ड वे। मैं उसको कल्चर्ड बोलती हूँ। इट्स नथिंग कि कोई छोड़ के गया हमारे लिए, हमारा वही तहज़ीब ही है। इंडिया में कभी बदतमीज़ी को टॉलरेट नहीं किया गया था, अभी भी। तो आज के बच्चों में ये कम देखा जा रहा है, क्योंकि पता नहीं क्या है, एनवायरनमेंट टफ हो गया है उनके लिए। तो आर्मी में चले जाए ना अगर इवन 2 साल के लिए, मैं हर किसी को कहती हूँ, हर यंगस्टर को एटलीस्ट 2 साल आर्मी करना चाहिए। नॉट बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स, इट्स अ डिफरेंट लाइफ, यू एन्जॉय द नेचुरल रिसोर्सेज, द bonhomie, the camaraderie. It's a different life, it's a beautiful life. बट आर्मी में काफ़ी रीलोकेशन भी होता है। होता है, पर एनवायरनमेंट चेंज ज़्यादा नहीं होता है। यू जस्ट मेक न्यू फ्रेंड्स, न्यू पीपल, बस घर वैसे ही दिखता है, स्टाफ वैसे ही मिलते हैं, हॉस्पिटल वैसे ही होता है। तो बहुत कम ट्रांजिशन में झटका नहीं लगता। हाँ, अगर फील्ड में पोस्टिंग हो गई तो झटका लगता है, पर वो भी दे टेक इट इन द स्ट्राइड, क्योंकि दे आर कंडीशन फॉर दैट, दे आर ट्रेन फॉर दैट, मेक So द do you मोस्ट। think मतलब having an army background has helped your children? Very much, very much. Both of them have empathy. They are both very responsible children. They're both confident children. They both speak very well. तो ये सब मेरे ख्याल, आई थिंक आर्मी बैकग्राउंड से ही आता है। मोस्टली आप देखोगे आर्मी चिल्ड्रन आर डूइंग वेरी वेल बिकॉज ऑफ दीज फ्यू फंडामेंटल गुड थिंग्स दैट दे हैव इम्बाइब्ड। Also discipline. डिसिप्लिन सबसे ज़रूरी। हर डिसिप्लिन को आप खाली सख्ती से ना देखें, डिसिप्लिन इन एवरीथिंग। टाइम से पहुंचना, यू give respect to the other person, you honor the other person's time, you don't be late. That is most disregarded thing in here in big cities now. यहाँ उल्टा ही है, लोग समझते जितना लेट आए उतने हम शानदार हैं, ऐसे नहीं। वहाँ आर्मी में वो सब नहीं है। हायरार्की का रिस्पेक्ट करना, सीनियरिटी, आप जूनियर हैं तो आपका ये यहीं तक आपका लाइन ड्रॉन है, सीनियर है तो लाइन अलग है। लेडीज़ आर सो वेल लुक्ड आफ्टर, आई कांट टेल यू। आर्मी फौजी चले जाते हैं फ्रंट्स में या फील्ड ड्यूटीज़ पे, वाइफ्स अकेली होती, किसी को किसी चीज़ की कोई नहीं जाता अपने मैके में जाके बैठते हैं, कुछ नहीं।
Army is like a family for them. They really look after you so good. And now coming back to the responsibility of a mom, वहाँ पे जब मुंबई आई आप एंड जो we know Priyanka Chopra as the heroine, इंडिया मिस इंडिया मिस वर्ल्ड जीतने के बाद, तो यहाँ पे होते हैं बहुत लोगों से मिलना जुलना, एंड आई थिंक शी गॉट हर फर्स्ट ब्रेक विद अ ह्यूज स्टार, वेदर इट इज़ हिंदी फिल्म और साउथ इंडियन फिल्म. हाउ वाज द होल थिंग, मतलब कैसा था? Joining film was not in her plan of action. She wanted to study. She's very good in studies. The first offer Tamil film का आया through my brother-in-law. हमारे घर में patriarchal family है husband के side में, तो what brother-in-law was the oldest in the family, तो what he says goes. तो he told my husband कि 2 महीने का शूट है सिर्फ समर वेकेशन में, कर लेने दो, नहीं अच्छा लगा तो अगला नहीं करेगी, पर इसमें 2 महीने में कोई प्रॉब्लम नहीं. बहुत मुश्किल से प्रियंका कन्विंस हुई और अनहैपीली उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया. अच्छा, शी डिडंट वांट टू डू फिल्म्स? नो नो नो, उसके एजेंडा में ही नहीं था. फिर जब वो शूटिंग शुरू हुआ तो इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट. एक तो दूसरा लैंग्वेज है, विजय ह्यूज स्टार, और ये एकदम कैसे बोलूँ, जिसको नहीं कभी स्कूल में थिएटर वगैरह करती थी, प्लेज करती थी, डांस करती थी, पर वो लेवल ही कुछ और है व्हेन यू गो टू अ मेन स्ट्रीम सिनेमा. पर यही था कि हम लोग प्रॉप अप करते थे कि सी दिस इज़ अपॉर्चुनिटी, पर डरने की नहीं होता तो नहीं होता है, ख़त्म है ना. यू ओनली 17, यू कैन ऑलवेज गो बैक. 18 यू कैन गो बैक टू स्टडीज़, कोई डर की नहीं. एंड विजय वॉज वेरी 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 हेल्पफुल, वेरी नाइस. उनका प्रोडक्शन वॉज वेरी गुड. So gradually she started liking it and then loving it. Facing the camera became like a natural for her. So that went off good. तब तक यहाँ हिंदी films भी हो गए. Then one thing led to the other. जब उनको डेब्यू अवार्ड मिला फिल्म फेयर का, उनको और लारा को, तो कॉन्फिडेंस भी आ गया कि आई कैन डू दिस. तो फिर बैठ के घर में हमारा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ कि I want to take this course. हमने कहा go ahead. If this is what you think is good for you, then do it. But there's always a plan B. अच्छा, then she wanted to do a course. नहीं, then she wanted to do movies. Yeah. तो हमने कहा एक प्लान भी है. सपोज नहीं सक्सेसफुली 2 साल अपने को टाइम दो, अगर नहीं ठीक हुआ तो यू कैन ऑलवेज गो बैक टू स्टडीज़. तो एन्जॉय इट. तो एन्जॉय करके काम की हो, विच इज़ विजिबल. बट इनिशियल ईयर्स में काफ़ी बैकलैशेस भी मिले. आई मीन इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर. आप जो भी करते हो, लोगों पीपल हैज़ एन ओपिनियन फॉर इट, फॉर हाउ यू लुक, टू हाउ यू वॉट एवर यू आर डूइंग. तो हाउ डिड यू मैनेज एज अ मॉम? शुरू में हम लोग भी बहुत बुरा फील करते थे. आर्टिकल्स पढ़ते थे तो हम तो रोते होते भी थे. पर फिर प्रियंका बोली कि मॉम, यू नो व्हाट आई एम, नो वन एल्स नोज इट बेटर देन यू, व्हाई डू यू रीड ऑल दिस ट्रैश. तो हमारे घर में मैगजीन्स आने बंद हो गए, पेपर्स आने बंद हो गए. क्योंकि एक बार देखो तो फिर ह्यूमन माइंड अपसेट हो ही जाता है कि हमारी लाडो के लिए ऐसा क्यों बोल रहा कोई. बट देन वी स्टॉप डूइंग दैट. धीरे धीरे हम भी थोड़े कठोर हो गए कि ये लिखने वाले, उनको भी तो रोजी रोटी कमाना है, ये लिखेंगे तो ही कमाई होगी. करने तो जो करते हैं, जिनको पढ़ना वो पढ़ें. हमें पता है कि हमारी बच्ची क्या है. वी वे कॉन्फिडेंट. एंड व्हाट अबाउट द एक्सटेंडेड फैमिली, जो सबसे ज़्यादा प्रेशर डाल देते हैं? बहुत ज़्यादा था, बहुत. एक थे फैमिली वाले जो कहते हमारे घर की लड़कियां ये नहीं करती हैं, और बहुत ही वॉज वेरी अगेंस्ट फिल्म लाइन. पर अब उनके भी बच्चे आ गए फिल्म में, सो इट्स ओके. अब कोई नहीं, नाउ एवरीथिंग इज़ नाइस. आई जस्ट वॉन्ट टू नो दैट बच्चे के ऊपर जो कुछ भी होता है, शी वॉज नॉट अ वेरी कन्वेंशनली वेरी गुड लुकिंग. सब लोगों ने उस आई थिंक इनिशियली स्किन कलर के लिए भी बात किया था. एवरी थिंग वॉज बींग वेरी स्पोकन अबाउट. सो हाउ डिड यू मैनेज, मतलब हाउ डिड यू मैनेज, हाउ डिड शी ऑल्सो मैनेज? मैंने पहले बताया था उसकी क्वालिटीज़ क्या थे, फियरलेस एंड कॉन्फिडेंस.
बस यही 2 प्रॉप्स थे जिसके ऊपर वो खड़ी रही। शी वाज़ लाइक अ हिटमी, जितना मारो नीचे करो उतना ऊपर। और बट देन शी स्टार्टेड इम्प्रूविंग हरसेल्फ, होनिंग हर टैलेंट, होनिंग हर टेक्निक, सीखना, ट्रेनिंग लेना। शी जॉइन्ड डांस क्लासेस, 5-5 6-6 घंटे डांस करती थी, बिकॉज़ शी डिडंट वांट टू बी टिक्ड ऑफ फॉर नॉट नोइंग रिदम, नॉट नोइंग स्टेप्स। तो मेहनत तो कोई कम किया ही नहीं उसने। वेरी वेरी हार्ड वर्किंग गर्ल। कोई ऊपर से उसको अपॉर्चुनिटीज़ मिले, उसको उसने पूरा फुल ऑन यूज़ कर लिया, अच्छे से अपने को ट्रेन किया। इट वाज़ नथिंग लाइक कि मेरे कोई गॉडफ़ादर थे या कुछ भी ऐसा, कुछ नहीं। रैंक आउटसाइडर। Then you became a producer also along with her. So how did that happen? When Priyanka got the offer for music, she was the peak of her career. That was again a very tough decision for her to take कि अभी मैं कि इतना अच्छा करियर हो रहा है या चल रहा है मैं उसके बीच में अगर उठ के एकदम अलग ही किसी करियर में मूव कर जाऊँ, तो इम्प्रेशन ये रहेगा कि शी इज़ लॉस्ट और म्यूज़िक का कोई पता भी नहीं मुझे। वो फिर अगेन हमारे घर में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, बैठ के डिस्कशंस होती हैं, प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस होता है। अगेन वी सेड कि ये अपॉर्चुनिटी है, ये करियर कहीं नहीं जा रहा है, उसको भी हम लोग कीप डूइंग समथिंग सो दैट यू आर रेलेवेंट इन योर चोजन फील्ड एंड गिव अ म्यूज़िक अ शॉट। क्योंकि म्यूज़िक भी अच्छी थी उसकी। बाहर वो इंग्लिश म्यूज़िक सीखती थी, परिणीति यहाँ इंडियन क्लासिकल सीखती थी। तो म्यूज़िक इनके फैमिली में है ही, और बच्चों को भी सबको सिखाया गया था। तो शी हैड म्यूज़िक विद हर, तो शी टुक दैट स्टेप। आई रिमेंबर मीटिंग वन ऑफ द एजेंट्स ऑफ अ बिग लेबल। He told me when Priyanka walked in, ऐसे लगा जैसे the molecules in the room shifted. Everybody stood up, paid attention. Who's this girl who walked in? She had that charisma, she had that confidence, and she dressed for the role. She's amazing. And that's, I mean, as a proud mother, I can just say that she's amazing. Only because of these qualities that she has. And all these are just made by practice. ये कुदरती नहीं है, पैदाइशी नहीं है ये सब क्वालिटीज़। उसने अपने आप के अंदर अपने को सिखाया हाउ टू प्रेजेंट हर सेल्फ एंड हाउ टू लुक कॉन्फिडेंट, बी कॉन्फिडेंट। अंदर से हिल रही होगी, यू कैन मेक इट, दैट्स कॉन्फिडेंस। तो उस समय हमने कहा कि चलो इंडिया में लेट्स पुट डाउन रूट्स हियर। तो द बेस्ट थिंग आफ्टर एक्टिंग, बिहाइंड कैमरा से बिफोर कैमरा हो जाए, बिफोर कैमरा से बिहाइंड कैमरा हो जाए, दैट्स द मोस्ट पीपल टेक दैट राउट। Hmm. That's how we started Purple Pebble production. She was shooting in the south somewhere for विशाल भारद्वाज फिल्म। तो मैंने फ़ोन से बोला ये नाम बोला गया है, पर्पल पेबल पिक्चर्स, अच्छा नाम है। तो शी लव्ड इट, फिर हमने उसको बना लिया। पर उसके साथ हर कंडीशन पे कि वी वोंट डू मेन स्ट्रीम सिनेमा, विल गिव अपॉर्चुनिटीज़ टू रीजनल फिल्म्स, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे रीजनल फिल्म्स हैं, उनको मेन स्ट्रीम अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आते, एक्सपोजर नहीं मिलता, अपने ही रीजन में दिखाई जाते हैं, वहीं रह जाते हैं। एक्सेप्ट फ्यू लाइक पंजाबी, बिकॉज दे हैव ऑडियंसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो बाहर भी दिखाए जाते हैं। तमिल, ये सब बाहर दिखाए जाते हैं, बिगर इंडस्ट्रीज। बट देयर मैनी अदर स्मॉलर इंडस्ट्रीज हु डोंट गेट एन अपॉर्चुनिटी। तो हमारे कंपनी का फॉर्मेट था, इन एवरी फिल्म दैट वी डू देयर बी सम न्यू कमर ऑफ सम सॉर्ट। या तो राइटर होगा, स्क्रिप्ट राइटर होगा, डायरेक्टर न्यू होगा, म्यूजिक डायरेक्टर, कोई तो एक्टर न्यू होगा। विल गिव अपॉर्चुनिटीज़ टू पीपल बेसिस ऑडिशन, बेसिस The मेरिट। talent. Ah. मेरिट, कुछ भी नहीं कि सिफारिशी नहीं। So that's how we made about 9, maybe 10 regional films, and we won national awards for 2 of them for Marathi. And a Sikkimese film, imagine, Sikkimi film went all over the world, doing so well. How wonderful. Mm.
तो मैं ये बस जानना चाहती हूँ, आप बस अपने डॉटर के साथ फ्लोट करती गई एंड इट्स लाइक वो छलांग भर रही थी लेकिन आप उनके साथ उड़ रही थी एंड यू ऑल्सो स्टार्टेड ओनिंग अ लॉट ऑफ डिफरेंट हैट्स। इसके साथ साथ आप मतलब यू लर्नड द होल आर्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ है, मतलब टू मैनेज पीपल एंड टेकिंग डिसीशंस एंड ऑल दोज थिंग्स। तो कुछ डिसीजंस, कुछ चीज़ें थी जो मेरी स्ट्रेंथ्स थे, जो मैं कर सकती थी, लीगल एंड फाइनेंशियल, वो मैं करती थी। बट थ्रू आउट प्रोडक्शन हाउस में प्रियंका वाज हैंड होल्डिंग अस ऑल द टाइम। बाहर थी तब भी सिलेक्शन, नरेशंस, खुद बैठती थी नरेशंस पे, खुद बैठती थी, फिल्म सेट पे आती थी, क्या मेन्यू होगा, क्या खाना होगा, ये सब प्रियंका इज़ टू पे अटेंशन टू ऑल दैट। चाहे बाहर शूट कर रही हूँ, कहीं भी होगी, she made time to see that production house was doing good. तो उससे किसी को हिम्मत खरा, और she chose very good staff. Our unit was wonderful. We had such wonderful people working for the company. तो difficult नहीं था. Beautiful. You were featured in content around secrets to a happy life. Can you share me something surprising that truly grounds you and truly keeps you going forever? देखो, जो जैसे आपने कहा यू आर वेयरिंग सो मेनी हैट्स, जो कि मुझे लगता है 24 घंटा कम है, इतना कुछ करने को है, इतना कुछ देखने को, एक टाइम कम है। तो इफ़ यू वांट टू डू जस्टिस और वट एवर यू वांट टू डू इन अ डे, 5 चीज़ें मुझे करनी है आज। तो पाँचों चीज़ के लिए कंपार्टमेंटलाइज योर लाइफ। मैं कंपार्टमेंटलाइज माई लाइफ, माई डे। I'm here, my phone is off, I'm not thinking or doing anything. And when I'm at work, I'm in the clinic, I'm not thinking of anything, I'm just working. तो कंपार्टमेंटलाइज करें तो अपना मेंटल सैनिटी रहता है। अगर मैं कुछ और कर रही हूँ, ध्यान मेरा कहीं और है कि वो कोई टेंशन चल रहा है ना, आई डोंट ब्रीड टेंशन। नहीं तो लोग अपने जहन में डाल लेते हैं टेंशन, वरीज, एंड इट कीप्स वर्किंग इन योर हार्ट, वो छेद बनाता जाता है दिमाग के अंदर। तो मैं नेगेटिविटी को बाहर रखती हूँ। स्ट्रेस को जब फेस टू फेस आऊँगी, स्ट्रेस के साथ देखी जाएगी। प्रॉब्लम आएगा तो आई ट्रस्ट में दिमाग की सही उपाय बता देगा। बट सारा दिन स्ट्रेस करो तो कुछ जवाब नहीं आना है, यू गेट एग्जॉस्टेड थिंकिंग अबाउट दैट। तो ये मेरा एक है बहुत इम्पोर्टेंट कि एंड दिस टू शैल पास। अच्छा वक्त है तो ये भी चला जाएगा, बुरे वक्त हैं तो ये भी चला जाएगा। तो अपना दिमाग को ख़राब करने की कोई ज़रूरत नहीं। नो हाइज नो लोज, आई एम वेरी काम। अपना इक्विलिब्रियम रखती हूँ मैं। ऑफ कोर्स सुबह 2 घंटा माई लव टाइम होता है, एंड आई डू माई मेडिटेशन, आई डू माई योगा, आई डू माई रीडिंग, आई प्लान माई डे। 2 घंटा क्वाइट टाइम, अर्ली मॉर्निंग में आई एम अर्ली राइजर। ये सब करके 7:30 बजे माई डे स्टार्ट्स। लाइक यू टोल्ड मी अबाउट योर हस्बैंड। So these things keep your sanity and keep you grounded. मुझे पता है कि आज अभी ये जो मैं एंजॉय कर रही हूँ, ये बस इतने ही दिन का है जब तक है। और दूसरा जो मैं मानती हूँ, किस्मत और कर्म, बोथ गो हैंड इन हैंड। अच्छे कर्म करो तो बुरे दिन भी आपको इजी हो जाएगा, बिकॉज एक तो किस्मत से ज़्यादा और पहले कुछ मिलेगा ही नहीं। तो आप अच्छे कर्म करते जाओ, जब आपका टाइम आता है तो आपको मिलेगा ही। डोंट लूज़ होप। सी एवरीबडी सीज अप्स एंड डाउन्स। हमारी भी लाइफ में बहुत उथल पुथल रहा है, बहुत अप्स एंड डाउन रहा है, बट आई नो कि आई नेवर लॉस्ट माई सैनिटी, नेवर लॉस्ट माई कूल, नेवर गॉट एंग्री, डिडंट स्क्रीम, ये सब कभी नहीं। जस्ट केप्ट माई इक्विलिब्रियम। सो दीज आर द क्वेश्चंस फॉर हैप्पीनेस। सो ब्यूटिफुल टू हियर। इसके साथ ही एक्चुअली मुझे दिमाग में और एक चीज़ जो आ रहा है दैट द मोमेंट यू आर सक्सेसफुल एट लिटिल, तो तुरंत मतलब खुद से ज़्यादा मुझे लगता है आजू बाजू के लोग उसके मतलब दिमाग खो देते सींग निकल आते हैं। सीख निकल आते। सो हाउ वाज इट विद ऑल ऑफ यू? नन एट ऑल, दिस टू शैल पास, यही हमारा डिक्टा था ये हमेशा से? हमेशा से। जब हमारी बहुत सक्सेसफुल प्रैक्टिस था तभी भी, दिस टू शैल पास। यू वोंट बिलीव इट, हम लोग छोटी प्रैक्टिस थी, बड़ी प्रैक्टिस थी, जब भी वी हैव ऑलवेज डन चैरिटी। हमारी एक छोटी एम्बुलेंस बना लिया था हमने, और संडेज़ को हम विलेजेस जाते थे
free treatment, free medication. It was just कि we are getting so much, कुछ आगे देना चाहिए. तो यही चीज़ प्रियंका में इम्बाइब करी. वो लोग, आई थिंक प्रियंका का लास्ट बर्थडे हमने सेलिब्रेट किया था, बस 5 years old. उसके बाद से उसका हर बर्थडे, सिद्धार्थ के हर बर्थडे, एनी स्पेशल डे वाज ऑलवेज सेलिब्रेटेड इन ऑर्फनेजेस, ओल्ड एज होम्स. उनके घर में कभी पार्टीज नहीं हुए. तो मेरे ख्याल इवन नाउ, अब डैड का बरसी है तो दे आर गोइंग फॉर टू एन ऑर्फनेज टुमारो. My son and the daughter-in-law of the chosen charity, and they'll do whatever they do. प्रियंका तो पूरा रेडी लगवा देती थी इन दी ऑर्फनेज कि आज बच्चों को जो खाना, जितना खाना, डोसे हैं, चाट्स हैं, ये है वो, आइसक्रीम्स हैं, 10-5 ठेलास लगवा देती थी ऑर्फनेज के अंदर. द किड्स यूज्ड टू हैव अ ग्रेट टाइम एंड शुड प्ले विद देम, स्पेंड टाइम. टाइम इज़ मोस्ट वैल्यूबल थिंग. तो यही चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो कीप यू ग्राउंडेड, दोज आर रियलिटी चेक्स. तो सींग निकलने का अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिला. व्हेन यू सी पीपल हु आर लेस फॉर्चुनेट देन यू, कीप्स यू ग्राउंडेड. And Priyanka has always said, and I think she's written it also in her hand, Daddy's Little Girl. So how did she manage to, I mean, sudden losing her father and for the whole of all of you? मतलब क्योंकि आप लोग स्ट्रेंथ थे उनके. वी वर ऑल्सो इमर्स्ड इन टू जस्ट ईच अदर. मेरा तो खैर आउटसाइड लाइफ ही नहीं था, आउटसाइड माई फैमिली. वी वर टू टाइट. तो प्रियंका एंड सिद्धार्थ ऑल्सो, आई मीन प्रियंका का काम पे जाती थी, घर आती थी, एंड टाइम वेल स्पेंट विद पेरेंट्स, विद ब्रदर. तो एक यूनिट, हम लोग बहुत टाइट यूनिट थे. ऑफकोर्स द लॉस वॉज नॉट सडन, वी न्यू ही वॉज इल, तो मेंटली कुछ तो प्रिपेयर थे ही. बट व्हेन द लॉस एक्चुअली हैपेंड, all three of us were grieving on our own, अलग तरीके से. And 6 months into that, Priyanka said, this is not working. We have to share with each other. We have to be together. So she took us on a holiday to Turks and Caicos. Just the three of us. क्योंकि हम लोग रोए ही नहीं थे, हम किसी आपस में बात ही नहीं करते थे. Both, all three of us quietly moving around, अपना काम करी जा रहे, as if nothing happened. You know, it was like a defense mechanism. अगर मैं रोने लगी तो बच्चे क्या सोचेंगे, बच्चे सोचते हम कब तो मम्मा का क्या होगा, आउट ऑफ केयर. सो वी स्पेंट अ वीक देयर, bonded very well, spoke what we wanted to speak, came back so refreshed. We could get back to work with new josh. These things don't fade, don't go away. The hurt stays, but then you learn how to deal with it and it becomes easier to deal with it. मुझे भी ऐसा लगता है कि जब कोई यू लूज समबडी, एवरीबडी कोप्स अप इन देयर ओन वे ऐसे करके, बट व्हेन एज अ यूनिट यू यूनाइट एंड think about that person, talk it out. Great group of family and friends really is so important for a person to lead a comfortable life. मैंने wealth, health सब एक जगह. अगर आपकी फैमिली अच्छी हो, आपके फ्रेंड्स अच्छे हो, तो इतना रास्ता सहज हो जाता है. तो दोनों बच्चों में कभी कंपटीशन नहीं हुआ? सिबलिंग राइवलरी होती है, तो बट आई थिंक इट्स ऑलवेज हेल्थी. Priyanka has been like a mentor for him, and she even guides me, because there are many places जहाँ मैं पुराने ज़माने की लगती हूँ, कई जगह लगता है कि मैं बहुत मॉडर्न हूँ. तो दोनों के बीच का ब्रिज प्रियंका बन जाती है, कभी सिद्धार्थ बन जाते हैं. So yesterday he was teaching me something on my phone, how to download an app and how to do what. Child is the father of man. और ये माँ बाप को जितना जल्दी समझ में आ जाता है, वो मुझे लगता है वो एक ईजियर ट्रांजिशन होता है. थैंक गॉड डिपेंडेबल बच्चे, ये बहुत अच्छा है. अगर हमको अबैंडन कर दें तो मुझे आएगा नहीं ऐप डाउनलोड करना. अगर वो मुझे कहें कि मॉम व्हाट, आप पढ़े लिखे, आपको इतना भी नहीं आती, तो ये नहीं कहते वो लोग कभी. दे नो कि मेरी शॉर्ट कमिंग्स हैं.
They accept it and they help me. But life has always been like एकदम छलांग छलांग के साथ like इत्तेफाक. yeah, I mean whether it is winning Miss India to Miss World to getting into film industry and then doing it big and then going to the West and then marrying a Westerner. तो इस अब तक डू यू थिंक देयर आर ओपिनियंस ऑफ द फैमिली जो मैटर करता है कि अब अभी तो बिल्कुल भी अब नहीं? तो नहीं, अब प्रियंका छूती हो गई है. नोबडी कैन टच हर. फैमिली में भी उसके हर डिसीजन हमें सही लगता है. एंड आदत होगी, पहले से छोटी थी तब से ही हम सपोर्ट करते रहे उसके डिसीजंस को. तो अब हर लगता है कि जो भी सोच समझ के लेती है, इट्स ऑल गुड डिसीजन एंड बेनिफिट्स एवरीबडी. तो कभी डाउट नहीं आया मन में कि प्रियंका से कोई एरर हो रहा है, क्योंकि वो इम्पल्सिव नहीं है. बहुत सोच समझ के वो डिसीजन लेती, बिकॉज शी नोज कि द कॉन्सिक्वेंसेज आर हर्स. तो बहुत अच्छा किया उसने जो निक से शादी कर. आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट. And how is the phase of grandmother? Ooh, the best promotion in life is that to become a nanny. I love it. How are you managing that responsibility? मैं तो रोज़ भगवान को, खुदा बाप को थैंक यू बोलती हूँ कि बच्चे अपनी फैमिली में, अपनी लाइफ में मुझे इन्वॉल्व रख रहे हैं. ये तो अभी देखो सब न्यूक्लियर फैमिलीज, दे डोंट वांट नाना नानी दादा दादी कमिंग एंड मेसिंग विद द चिल्ड्रन. कि आई वांट माई बच्चा टू बी फॉलोड लाइक दिस ओनली. हमारा कानून, हमारे मतलब परवरिश मेरी तरह होना तो भी चाहिए, पेरेंट्स का ही हक है कैसे परवरिश होनी चाहिए. लेकिन ग्रैंड पेरेंट्स को एक्सक्लूड करना ठीक नहीं है, क्योंकि बच्चे को भी थोड़ा इजी टाइम चाहिए. कोई चीटिंग करने को चाहिए, कोई रूल ब्रेकर चाहिए, तो ये नानी दादी कराती है रूल ब्रेकिंग. फन टाइम यही लोग कराते हैं. तो इट्स अ गुड थिंग कि इन्वॉल्व रखते हैं. हम भी अपने बाउंड्रीज मेंटेन रखते हैं और बहुत प्यार से रखते हैं मुझे. तो आई लव दैट. So how are you bridging the gap of modern parenting and being the traditional grandmother? वो तो एक हार्ट से होता है, एक दिमाग से होता है. तो हार्ट से गलती हो जाती हैं, दिमाग से सही हो जाता है. तो आपको भी मतलब नॉर्मल मतलब फैमिलीज जैसे गाइडलाइंस मिलते हैं, ये नहीं कराने वो नहीं हाँ, वो कराने? तो पेरेंट्स का हक है. आई रिकग्नाइज दैट, बिकॉज मैंने अपने बच्चों का परवरिश अपने हिसाब से किया. तो मैं चाहती हूँ कि उनका बच्चा उनका प्रतिबिंब बने. पर हम लोग का होना भी एक बच्चे का सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है. जो बच्चे ग्रैंड पेरेंट्स के हाथ में खेले कूदे पले हैं ना, वो देखो कि बड़े होकर सिक्योर बच्चे होते हैं, वैल्यूज़ होते हैं उनके पास. पेरेंट्स बिजी हैं अपने करियर के साथ में, क्वालिटी टाइम देंगे, रूल्स बनाएंगे, फॉलो करना फिर जो भी उनके साथ उनका काम है. पर मैं समझती हूँ कि जो एक सिक्योरिटी आ जाती है कि हाँ घर में कोई है, तो काम करने वाले बच्चे भी खुश हैं. दे रिलैक्स, दे कैन वर्क विदाउट वरिंग कि बेबी ने खाना खाया कि नहीं, सोई कि नहीं. तो वो सब ग्रैंड पेरेंट्स का काम होता है. इट्स अ साइकिल ऑफ लाइफ. व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड. हमने कुछ अच्छा किया होगा इसलिए तुम हमें चांस दे रही हो अपने बच्चे के साथ. आई एम वेरी ग्लैड. मैं तो इसी बात का शुक्र करती हूँ बस. मैं देखती हूँ कितनी फैमिलीज़ में दे डोंट अलाउ ग्रैंड पेरेंट्स टू इंटरैक्ट विद द चिल्ड्रन. दे आर नॉट वेलकम. डू यू थिंक कि आप बच्चे के साथ जब आप अग्री करते हैं, आप उनको समझने की कोशिश करते हैं, आप उनको एक सेफ स्पेस दिखाते हैं, तो बच्चे भी हमेशा आपको भी हाथ पकड़ के रखते हैं. आप रिजिड बनोगे, बच्चे देयर वुड बी अ टाइम दैट हाँ इंटरेक्शन होगा, लेकिन फिर वो दूरियां. इंटरैक्शन नहीं होगा, क्लैश होगा, क्लैशेस होंगे, और क्लैशेस आर नेवर बेनिफिशियल टू एनीबॉडी. Your opinion may be different from my opinion, but I should be willing to listen to you. You should be willing to listen to me. हो सकता मैं सही साबित हो जाऊँ, हो सकता आप सही साबित हो जाए. जो सही साबित हुआ वो उसकी सुननी चाहिए. हमारे बचपन से बच्चों को यही दिया था, कन्विंस मी दैट जो ये तुम करना चाह रहे हो वो सही है. वी वुड हैव अ कॉन्वर्सेशन. कभी नहीं हुआ कि मैंने कह दिया इसलिए नहीं करना. ये तो हुआ ही नहीं कभी, बिकॉज आई एम सेइंग सो. नेवर. छोटी सी थी,
तो उसने बोर्ड में अपना नाम नहीं देखा तो कही कि क्या मैं इस घर में नहीं रहती हूँ। तो खुददार बच्चा था। तो ऐसे बच्चे का कैरेक्टर हम बनाते हैं, पेरेंट्स बनाते हैं। और पेरेंट्स ही रिजिड रहेंगे तो क्या होगा उस बच्चे का? से डांट डपट लड़ाई क्लैश वही सीखेगा, वही बनेगा। So if they have an opinion of their यू शुड own, लिसन टू that दैट। is actually a good thing. यस, यू शुड लिसन टू द ओपिनियन, क्योंकि वो आज के हालात में आज का ह्यूमन है, आज की बात बोल रहा है। पता नहीं किस एनवायरनमेंट से आप आ रहे हो, वहाँ पे आपके ऑफिस में क्या हुआ, क्यों आपने अपना डिसीजन चेंज किया। आई वॉन्ट टू लीव अ जॉब, ना द पेरेंट्स सेइंग नहीं नहीं सच अ सिक्योर जॉब मत छोड़ो। Hmm. तो यू कन्विंस मी वाई आई शुड नॉट छोड़ो, एंड ही विल कन्विंस मी वाई ही शुड छोड़ो। तो जो बच्चे को पेरेंट्स का सपोर्ट मिला उनके डिसीजन में, वो आगे रॉन्ग डिसीजन भी होगा तो अच्छा करेंगे, यार मुड़ के देखेंगे हमारे पेरेंट्स आर देयर फॉर मी, डर के नहीं स्टेप लेगा। मुझे लगता है पेरेंट्स के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, जिम्मेदारी पेरेंट्स का फर्स्ट है। ड्यूटी बच्चे का हो सकता है लेकिन पेरेंट्स की जिम्मेदारी फर्स्ट। यू कांट टेल अ चाइल्ड यू हैव टू टेक केयर ऑफ मी बिकॉज मैं ओल्ड हो गई, इन्फर्म हो गई, मेरे बस का नहीं है काम करना, ये सब यू कांट टेल इट टू देम। जब तक आपने ग्राउंड वर्क नहीं किया, उस बच्चे के लिए एनवायरनमेंट नहीं बनाया कि वो खुशी खुशी आपकी लुक आफ्टर करे, क्योंकि आपने उसको खुशी दिया, वो अपने आप ही दे। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। मैं तो इसको फर्मली बिलीव करती हूँ। अच्छी परवरिश दी होगी, अच्छा एनवायरनमेंट दिया होगा तो बच्चा भी आपको देगा, नो डाउट्स अबाउट दैट। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होली स्क्वेयरली सिट्स ऑन द पेरेंट। So beautiful. मैं कितने बारी बोल रही हूँ, so beautiful. Actually, मुझे लॉजिकल actually, बोल रही हूँ मैं, yeah. लॉजिकल बोल रही हूँ, है कि नहीं? इलॉजिकल बात तो नहीं बता रही हूँ ना कि जो मैं हूँ सो हूँ, मैं तुम्हें एडजस्ट करना हो, ये आज का हालत है। But you have to take me as I am. I am like this. Why the hell should I take you as you are? I don't like you like this. चलो let's break up. रिलेशनशिप में कोई सीमेंटिंग है ही नहीं बिकॉज ऑफ दिस। तो मुझे लगता है उनका बैकग्राउंड भी ऐसे ही रहा होगा, अनप्लेजेंट। तो आप वो अनप्लेजेंटनेस को अपने प्रेजेंट में क्यों ला रहे हो? जो आपने अनप्लेजेंटनेस देखा होगा उसको दफ़ा करो। Bring pleasantness into your present. This is your life. You're living it. Keep it happy. Some fun this thing. हाँ, it's beautiful actually. मुझे तो इस सबसे actually मुझे मेरे माँ बाप और मेरे हालात याद आ रहे हैं। मैंने जैसे कहा कि मैं जब नई आई थी, मेरी माँ थी मेरे साथ, धीरे धीरे मेरे पापा भी आ गए और माँ बाप का हमेशा सपोर्ट रहा है। तो आज इवन आफ्टर मैरिज आई हैव माई पेरेंट्स विथ मी। उसको लेके मुझे कितनी बातें सुननी पड़ती है, तो उल्टा लगता है कि जैसे मैंने कोई गुनाह ही कर दिया है कि मेरे साथ मेरे माँ बाप है। पर समहाउ मुझे ऐसा लगता है कि जिस टाइम पे मुझे एक द वल्नरेबल डरी हुई एक बच्ची थी, पहली बार जब मैं बाहर जा रही थी, मुझे पता था स्ट्रांगली मेरे माँ बाप मेरे साथ ही है, मतलब पलट के देखने की भी ज़रूरत नहीं, साथ साथ चलते थे। तो आज भी मैं अपनी दिन को उनके बिना सोच नहीं सकती हूँ। सो दैट्स हाउ इट इज़। मतलब उन्होंने वो गैप दिया ही नहीं कि जाओ जाके करो वाली बात, दे वर देयर विद मी। सो दैट्स हाउ इट इज़। आई मीन आपको अलग से सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आप आज की बच्ची हो, आप आज की बात करो, मैं अपने ज़माने की बोल रही हूँ जब हमारे वहाँ और रिजिडिटी थी इन चीज़ों की। तो हमारे घर में माई मदर, हिज मदर बोथ लिव टुगेदर एज फ्रेंड्स। कैन यू इमेजिन दैट एवर कि सास सास दोनों की सासें एक साथ रह रही हूँ घर में, ससुर आते जाते रहते थे, बट his mother and my mother both lived together and समधीज had no bitterness, nothing, दोस्त की तरह, सहेलियों की तरह रहे, बिकॉज दे फेल्ट रिस्पॉन्सिबल। हम लोग दोनों बहुत बिजी प्रैक्टिस में थे, बच्चे निगलेक्ट ना हो, तो दे टुक केयर ऑफ माई होम, माई चिल्ड्रन, सब कुछ। मैं बताऊंगी तो हैरानी होगी। मेरी मदर इन लॉ जो थी वो सुबह 8 बजे तैयार होके क्लिनिक चली जाती थी, एंड शी वुड सी द एडमिन, चादर ख़राब हो गए, फटे हुए हैं, बैठो सिलाई करो, टाँको, लोगों को चाय मिला कि नहीं, पेशेंट्स ठीक हैं कि नहीं, राउंड लेती थी कि मधु 1 घंटा और सो लो। ये था, मतलब हु कैन नॉट लव सच अ मदर इन लॉ। और माई मदर शी टुक केयर ऑफ माई एंटायर हाउस,
बच्चों की पढ़ाई, बच्चों का होमवर्क, उनका यूनिफॉर्म, शूज़, क्या है नहीं है, घर में आज क्या बनना है खाना, सब चीज़ मम्मी देखती थी। मदर इन लॉ क्लिनिक देखती थी, एडमिन, फादर इन लॉ फाइनेंस देखते थे। वी वर फ्री टू वर्क। तो ये मेरे बच्चे एज दे वर ग्रोइंग दे सॉ दिस एंड दे विल प्रॉब्ली डू द सेम इन देयर लाइफ्स। ऐसे ही है अभी भी। आई एम गुड फ्रेंड्स विद निक्स पेरेंट्स। आई एम वेरी गुड फ्रेंड्स विद नीलम्स पेरेंट्स। आई फील छोटी सी ज़िंदगी है, अराउंड देखो कितना हार्डशिप्स है, तो घर के अंदर क्यों लाओ? घर आपका अपना वर्ल्ड है जो आपने बनाया अपने हाथों से, उसमें खुशहाली रखो। डाइनिंग टेबल पे कभी डिस्कशंस नहीं होने चाहिए प्रॉब्लम्स के। प्लेट छोड़ो, फाको, नहीं खाना मुझे, सी दिस हैपनिंग ना, मुझे नहीं खाना जा रहे, क्यों, फादर ने डांट दिया। हमारे डाइनिंग टेबल में कभी नहीं, ऑलवेज कंजीनियल कॉन्वर्सेशन। जो डिस्कशन वैसा टफ वाला होता हम लोग बैठ के करते थे, चाय के ऊपर, चाय पे चर्चा, हम लोग यही कहते, चाय पे चर्चा हो रही है। बच्चों के साथ भी यही। सो एनवायरनमेंट को प्लेजेंट रखो, ये मैं सब बच्चों को, आज के बच्चों को बोलती हूँ। डोंट मेक योर लाइफ मिजरेबल। और एक ऑलमोस्ट मैं एक लास्ट सवाल ही मैं बोलूँगी, सडनली दिमाग में आया, यू हैव ऑलवेज फ्लोन गॉन विद द फ्लो। तो जब सडनली आई मीन मैं बाकी सारी चीज़ें वेर पर्सनल दिस थिंग, बट सडनली व्हेन लोग इंटिमिडेशन की बात मैं कर रही हूँ, व्हेन यू फेस अ बिग एक्टर, और जो पहला पहला काम था, वेरंट यू इंटिमिडेटेड, मतलब मैंने अक्सर मेरी माँ को, मुझे डर लग रहा है, सो व्हाट वाज देयर, व्हाट वाज हैपनिंग इन द फ्रंट? अगेन देयर इज अनदर फॉर्मूला, कीप योर फ्रेंड्स क्लोज, कीप योर एनिमीज क्लोजर। तो जिससे आपको डर लगता है उससे सबसे पहले दोस्ती करो। और दोस्ती का सिंपलेस्ट फार्मूला इज स्माइल, स्पीक स्वीट। स्माइल का जवाब में आपको स्माइल ही मिलेगा। Nobody will frown at you if you're smiling and saying hello. What a अपने beautiful लाइफ को इजी बना लो, answer. मैं तो यही कहती हूँ। स्टे इजी, स्टे हैप्पी, इतनी सी जिंदगी है, मस्त रहो, खुश रहो, मस्त रहो, आबाद रहो। आपको मैं देखती हूँ आज इधर, कल फोटो में आप कहीं और बैठे हुए हो. हाँ, हाउ इज़ दिस बिजी लाइफ, एंड हाउ आर यू मैनेजिंग योर वर्क हियर, एंड हाउ यू मैनेजिंग योर सन, दैट फैमिली, योर डॉटर, दैट फैमिली, हाउ आर यू डूइंग Like I एवरीथिंग told इवन? you earlier, I compartmentalize my day. There's no overlap. मैं यहाँ हूँ, यहीं हूँ, नेक्स्ट जो भी होना है वहीं हूँ। बाहर जाती हूँ तो I'm only there. I'm with my granddaughter, I'm only with her. यहाँ का सब एडम फिट करके चली जाती हूँ। Nobody is irreplaceable. No job is कि डू और डाई, मैं तो फर्मली बिलीव करती हूँ। बस ये है कि जब आपके पास हैसियत है, जब आप अच्छा कमा रहे हो, तो एक नेस्ट एग ज़रूर बना के रखो फॉर डिफ़िकल्ट टाइम्स। डिफ़िकल्ट टाइम्स आएंगे ही आएंगे। आप यंग हैं, वेन एवर यू आर यंग यू कैन डील विद हार्डशिप्स, बट एज यू एज opportunities become less, health becomes poor, mind becomes weaker. That's the time when you need financial strength. So when you're young, I tell my youngsters, whoever I talk to, start building your nest egg. That is an amount you don't touch till you have reached a certain age. आपने 20 years target रखा, 30 years target रखा, touch मत करिए. And then when you're in a harder spot, you have your own backing, you have your own fund, you don't have to depend on anybody. You can set up something for yourself. You know, money begets money. That is another formula. जिसके पास पैसे नहीं, वो पैसे कमा ही नहीं सकता आगे. But जो moneyed people, they can make more money. जब आप young हैं, you start without money, but then you start saving. छोटे हम, मैं कैसा, यही चीज़ के ऊपर हमारा था कि जो हमारे मोस्टली कैश प्रैक्टिस थी उन दिनों बरेली में, तो छोटा बंडल, छोटे नोट्स के बंडल और बड़े नोट का बंडल, ये दोनों हमारा स्टैश में जाता था, बाकी बैंक में जाते थे. तो उससे मेरे ख्याल 3-4 साल के बाद आई कुड बाय द हाउस डाउन राइट.
outright purchase बरेली का घर with that money that came out of my अलमारी. तो बच्चों का भी from the time they were born I was saving funds for them. तो किसी टाइम पे मुझे फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी फील नहीं हुआ. दिस इज़ फाइनेंशियल प्लानिंग. तुम्हारी हैसियत जैसी है, आप 10 भी कमा रहे हो तो एक जमा कर लो, वही काम आएगा. दैट मनी विल ग्रो फॉर यू, दैट मनी विल वर्क फॉर यू. पर एट दिस एज डू यू थिंक, मतलब जब दुनिया को लगता है कि अभी तो काम करने की ज़रूरत नहीं है, यू हैव वेल एस्टैब्लिश्ड डॉटर एंड सन, बट यू स्टिल वर्किंग, व्हाई इज़ दैट? एक अपना आइडेंटिटी, अपना वजूद है, उसको जब तक मेरा बॉडी काम कर सकता है, माइंड लूसिड है, आई थिंक आई शुड बी एज इंडिपेंडेंट एज पॉसिबल. जब नहीं हो सकेगा तो बच्चे हैं ही, दिल टेक केयर ऑफ मी. बट until then I don't want to lose my identity. I don't want to lose my relevance in their lives, in my own life. अब मैं सर उठा के घूमती हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने बच्चों के फ्रेंड्स के साथ. So beautiful to talk to. It's Thank so you. beautiful to, I mean, see you. Like, मतलब there is no ऐसा, मतलब हड़बड़ाहट नहीं है. And at the same time, your one leg is here and the other one is somewhere else. मतलब इस पॉडकास्ट के लिए भी इनको बुलाने के लिए मुझे बहुत टाइम लगे. Not because she was not willing to, but she was traveling. मतलब आज यहाँ है तो परसों वहाँ है, कल वहाँ है. मतलब उनको पाना ही, मतलब एक जगह पे स्टेशन पाना ही मुश्किल. एंड द वे शी इज टॉकिंग इज आराम से, फुर्सत में. व्हाट डू यू डू फॉर टू कीप योरसेल्फ एक्टिव फॉर ऑल द पीपल ऑफ योर एज हु आर वॉचिंग, फॉर देम? बिकॉज आई कैन क्लियरली सी यू आर बिजी. तो अपने लिए आप कैसे टाइम निकालते हो? सारा वेल्थ एक तरफ, हेल्थ एक तरफ. हेल्थ इज़ योर मोस्ट वैल्यूबल वेल्थ. तो हेल्थ को मेंटेन करना, आप छोटी उम्र से ही अपनी डिसिप्लिन रखिए, अच्छा खाइए पिए, गलत काम कम करें. नहीं करो नहीं मैं कहती, कम करें. ऑल द बिकॉज यू हैव टू टेस्ट अ फ्रूट टू नो कि ये मेरे लिए अच्छा नहीं है. योर बॉडी विल टेल यू इट्स नॉट गुड फॉर यू. तो आई हैव अ वेरी सेट रूटीन अबाउट माई diet, my food, the books I read, the time I spend with people, my choice of friends, my choice of travel. Everything has a positive effect on me. It keeps me happy. जो चीज़ मुझे I keep the noise and the clutter out of my head. मैं एंटर ही नहीं करने देती हूँ. जो फालतू बातें करती डिलीट. जो ज़रा सा ऊंची आवाज़ में मुझसे बोला या रफली बोला, डिलीट. दैट पर्सन इज पर्सोना नॉन ग्राटा फॉर मी. ऐसे मेरी लाइफ में कोई इसेंशियल आदमी नहीं है जो मुझे पोक करे, मुझे अनहैप्पी करे, या जो मुझे दुखी देखकर खुश होए. ऐसे लोग मुझे नहीं रखना. तो मेरे फ्रेंड सर्कल में भी ऐसा कोई नहीं है. और हाँ, खाना पीना में आई एम वेरी पर्टिकुलर, वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट. नॉट दैट आई डोंट एन्जॉय, नॉट दैट आई डोंट पार्टी. आई कैन डांस द नाइट अवे, आई कैन डू व्हाट यू कैन डू बेटर. सब कुछ करती हूँ, लेकिन एट द बॉटम ऑफ इट योर बॉडी हैज़ टू बी रेडी फॉर ऑल दैट. बॉडी का लुक आफ्टर करना ज़रूरी है. मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है. मेंटल हेल्थ तभी सही रहेगा जब आप ये क्लटर हटा के रखो अपनी लाइफ से. और सारे दादी नानी जो सोचते हैं कि बच्चे के साथ बच्चों का ध्यान न रखना इन इट सेल्फ इज़ अ वेरी टीडियस प्रोसेस. तो उसके लिए और किसी चीज़ के लिए काम नहीं मिलता, तो आप नहीं टाइम ही नहीं नहीं नहीं, मिलता है. तो ग्रैंड चिल्ड्रन को देखना इज़ अ जॉय, इज़ अ प्लेजर. मैं कह रही हूँ मुझे 24 घंटे कम लगते हैं अगर बेटी के साथ रहना. बट एक टाइम होता है जब वो बच्चे भी सोते हैं ना, बच्चे स्कूल जाते हैं, उस वक्त क्या कर रहे हो? थकान क्यों हो रही है? आप अपना स्टेमिना बिल्ड करके रखो, वर्कआउट करो, योगा करो, पलंग योगा करो, चेयर योगा करो. ज़रूरी नहीं कि आप जिम जाएं, घर से बाहर निकल के वॉक करें. वो सब के लिए अगर टाइम नहीं, डजेंट मैटर. What you put inside your body is very important. When you put it inside is very important. And how you expend your energy is very important. ठीक है, तो टाइमली खाना खाना चाहिए. सारी दुनिया एक तरफ, आप अपने टाइम से खाना खा लें. अच्छे क्वालिटी का खाना खाएं जहाँ तक हो सके. यही छोटी छोटी चीज़ें हैं दबीना. You people are all sitting in the midst of a
a Visphotic environment, toxic environment. I'm part of it, but I'm now in the shadows, I would say. You all are in the thick of the fire, thick of the life. You people have to take care of your body and mind. Very, very important. नहीं तो आगे चलकर कितना डिफिकल्ट हो जाएगा if you haven't strengthened yourself to deal with it. वेरी वेरी ट्रू। Hmm. जितना मुझे इंटरेस्टिंग लगा था उनको देख के, कई बार हम लोग मिले हैं मिले। पार्टीज़ में इधर उधर, और हर बार ही मुझे लगा था कि इनसे अब मुझे बात करनी पड़ेगी, और आज मुझे ये कॉन्वर्सेशन इतना अमेजिंग, इतना हटके, इतना ब्यूटीफुल लगा। इट वाज लाइक एन इनसाइडर स्टोरी बट इन अ वेरी डिफरेंट नेरेटिव। जैसे आप सोचोगे कि हसल, हम लोग खूब डर गए थे, हमारा ऐसा हुआ था, बट देयर वाज अ पीस, देयर वाज अ काम, देयर वाज अ स्मार्ट वे ऑफ हैंडलिंग थिंग्स जो उभर के सुनने को आ रहा है। आई थिंक दिस कैन हेल्प आवर ऑडियंस टू अंडरस्टैंड व्हाट गोज behind bringing up a very strong girl। और जो आप मुझे लिखते हो कि मुझे, हम लोगों को ये करना है, माँ बाप सपोर्ट नहीं करते हैं या ऐसा कुछ, या आप हो माँ बाप हो जिसके बच्चे बहुत कुछ करना चाहते हैं, कुछ भी कर सकते, मतलब कुछ भी, मतलब कुछ भी, तो किस तरीके से आप अपने आप को अपने खुद के वजूद को बचाते हुए आप किस तरीके से आप उनके पास जाके खड़े हो सकते हो ताकि वो हाथ कभी ना छूटे। सडनली आप एक दिन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो ना कि वो एक दिन आपका हाथ पकड़ लेंगे। यू हैव टू नॉट लीव द हैंड, आई थिंक, Totally. है ना? Just be there. Your Just- hand holding should not be a pullback. Your hand holding should just be a comfort. कि है ठीक है। Let the child fly. Be the winds beneath the wing. Let them fly. ऊंचाई भरे, अच्छा बात नहीं, ऊंचाई भरे तो नीचे हम हैं ना। I'm there for you to catch you. Don't worry. और दूसरा, आजकल the children are losing themselves into drugs and losing themselves into games, computer games. They are trying to separate themselves from reality because reality is too bitter and they are unable to face it. Those are the kids who are going into the world of illusion, the world of delirium, the world of जहाँ सब कुछ पिंक लग रहा है, पर्पल लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बिकॉज दे आर अनेबल टू डील विद फैक्ट्स, डील विद रियलिटी। तो बच्चों को गलती मैं मानती नहीं इस चीज़ को। कुछ तो पीयर प्रेशर होता है, कुछ दूसरे लोग ज़बरदस्ती टला देते हैं आदत, एंड दीज आर हैबिट फॉर्मिंग थिंग्स। At one point, it's not possible for you to back off unless you have stopped at the right time or you have strengthened your resolve so much that you can get out of that bad habits. But most of the time, I think children need help today who resort to these things to alleviate their pain, their anxiety, their stress, because they don't know how to deal with it any other way. This is where I say meditation, yoga, reading good books, listening to knowledgeable people, to certain degree does। ज़रा आपकी ट्रेजेक्ट्री हाफ अ डिग्री भी हट जाए ना, आपका रास्ता दूसरा निकल आता है। तो हाफ अ डिग्री भी अगर ये लोग कुछ आपको बेनिफिट देते हैं, आई थिंक टुडेज किड्स शुड गेट दैट हिम्मत कि ये भुलावे में रह के, आप स्टूपर में रह के करके, यू विल नॉट अचीव एनीथिंग, नॉट फॉर योर सेल्फ, नॉट फॉर योर फैमिली, नॉट फॉर एनीबडी। But ठीक है, it's your choice. You want to go down slope, go down into the gutter. That's your choice. It's a conscious, thought out choice. Do that. But as a parent, I would say, don't do that. लोग अगर सक्सेस का एक फॉर्मूला जानना चाहेंगे, वैसे लोग फार्मूला ही ज़्यादा पसंद करते हैं, वो दूर से सिर्फ ग्लैम दिखता है, तो पास से आपको क्या दिखा? हार्ड वर्क, इसका कोई दूसरा सानी है ही नहीं। देयर इज नो ऑप्शन टू हार्ड वर्क एंड डिलीजेंस, फोकस। आप एक काम पे निकल चुके हो तो उस पर फोकस करो। डिस्ट्रैक्टेड होंगे कि आज कपड़े क्या पहनने, तो पार्टीज़ में जाना है, अगले मॉर्निंग यू लुकिंग पफी, यू नॉट लुकिंग, तो दैट्स नॉट बेनिफिटिंग योर चोजन करियर। योर फेस इज़ योर फॉर्च्यून। तो ये सब करके आप अपना फेस ही को डिस्ट्रॉय करोगे तो आप लंबे रेस के घोड़ा नहीं हो सकते। तो हार्ड वर्क,
फोकस एंड डेडिकेशन, यही है मंत्र सक्सेस का, किसी भी फील्ड में जाएं। तो आज भी व्हेन यू सी प्रियंका, शी स्टिल सो हार्ड वर्किंग। वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी वेरी हार्ड वर्किंग। आप उनका करियर फॉलो करके देखो। But she again compartmentalizes her life. When she has a break, she's totally a mom, totally a wife, does everything that a housewife would do. अपना घर अच्छे से संभालती है, अपने एनवायरनमेंट, अपने फ्रेंड्स, सबको क्लोज रखती है, और जब काम पे जाती है शी इज़ अनदर पर्सन। आप शॉर्टकट्स नहीं लो अपने, स्पेशली प्रोफेशन में। शॉर्टकट्स नेवर टेक यू टू द राइट स्पॉट। ठीक है, हार्ड वर्क तो है ही, और जैसे परफेक्शनिस्ट है, अगर उसके लेक्चर, उसकी बातें सुनो तो शी हैज़ रिपीटेडली सेड फेलियर इज़ नॉट एन ऑप्शन। कोई उसमें खोट निकाले ना तो बहुत पॉन्डर करती है उसके ऊपर सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए, तो निकालने का मौका ही नहीं देती, हमें नहीं देती। तो आई एम टॉकिंग, अब तो मदर वाली बात आपने स्टार्ट कर दिया, तो प्राउड मदर की बातें ऐसी होगी, आपको लगेगा हाँ आपकी बेटी इसलिए आप तारीफ़ कर रहे हो, लेकिन मैं कहती हूँ यूनिवर्सली कि शी इज़ योर परफेक्ट रोल मॉडल, एज अ वाइफ, एज अ मदर, एज अ डॉटर, एज एन एक्टर, एज अ philanthropist, as a as a person who's running an entrepreneur, एज अ वुमन, as a wholesome woman who keeps her sanity. कहाँ पे क्या एक्ट करना है वहीं पे वही रहेगी। अब मेरी बेटी तो पिजामा पहन के घर पे रिलैक्स्ड, बाहर का रूप अलग, जिस माहौल में जैसे होना चाहिए शी टेक्स एफर्ट फॉर दैट। एंड सेम आई कैन से फॉर सिद्धार्थ, जिस एनवायरनमेंट में होगा वहीं का बन के बना रहेगा। घर पे मेरे साथ फ्री एंड फ्रैंक। मैं तो ये भी कहती हूँ, अगर तुम अपसेट हो बाहर फॉर एनीथिंग, यू हैड अ बैड डे एंड यू फीलिंग मैड, एंग्री, डोंट होल्ड इट इन, आई एम योर पंचिंग बैग। स्क्रीम, रेव, रैंट, येल, मुझे पता है कि यू लव मी अनकंडीशनली। ये जो तुम्हारा बदतमीज़ी वाला बिहेवियर है, इट्स द आउटकम ऑफ समथिंग दैट इज़ हर्टिंग यू और बॉदरिंग यू। बाहर जाके चिल्लाओगे उससे बेहतर कि तुम घर पे चिल्लाओ, एंड देन आई जस्ट गिव देम अ हग एंड इट्स ओवर। कभी मैं कहीं नहीं कि यू आर बीइंग रूड और यू आर बीइंग नास्टी ना। आई नो इसका रीज़न है पीछे। दोनों बच्चे मेरे ऐसे जेम्स हैं ना, टच वुड। touch wood, absolutely, touch wood. That was a wonderful conversation. थैंक यू फॉर मुझे हैविंग पता है मी कि आपको करीना। भी भागना होता है 10 जगह पे, बट मुझे जितना मतलब पीस, काम, सुकून चाहिए था, एंड एट द सेम टाइम अ लॉट ऑफ मोटिवेशन, कि ऐसा नहीं कि यू नो गेट गोइंग, देयर इज़ नो फुल स्टॉप, चलते रहो, यू नो री एक्सप्लोर योर लाइफ, एब्सोल्युटली, एंड लाइफ विल कीप गाइडिंग यू। बिल्कुल। और जब टाइम ऐसा आया कि आप नहीं कर सकते हो, खुशी खुशी मत करो, बी हैप्पी अबाउट नॉट बीइंग एबल टू डू इट। ये नहीं कि हाय ना, तो अपने लिए वो बिस्तर रेडी रखो, गद्दे वाली, कि आपको कांटे नहीं चुभे जब आपका ये हालत आएगा, ये टाइम आएगा, यू कांट डू एनीथिंग फॉर योरसेल्फ। तो बॉडी को जब रेस्ट चाहिए तो गद्दे वाली रेस्टफुल बिस्तर प्लेस भी, बना के हाँ। रखो, अपना घर को रेस्टफुल जगह बनाओ, अपने लिए स्टाफ रखो, अपने लिए हेल्पर्स रखो। डू दैट सो दैट यू डोंट हैव टू स्टूप डाउन, या ऐसा टाइम आएगा ही। एज यू एज थिंग्स गो फ्रॉम बैड टू वर्स। तो जब तक मेंटल फैकल्टी ठीक है, अपना अरेंजमेंट, अपना बिस्तर अच्छा बना के रख लो। मेंटल फैकल्टी ख़त्म हो गया तो आपको तो पता नहीं चल रहा क्या है। बाकी लोग सफ़र करें, पर हैप्पी हैप्पी सफ़र करें बिकॉज यू डिड गुड, ऐसे। एंड यू हैव योर बेड सेट easily. Hope you had a wonderful time listening to this beautiful conversation. होप आप लोगों को वो जो एक छोटा सा मोटिवेशन होता है, छोटा सा पुश होता है कि इफ़ शी कैन डू इट, वाई कैन नॉट आई। तो ये सोचते हुए, अगर आपको और भी कुछ जानना है उनसे, कुछ भी, आप मुझे लिख के भेजिए इन कमेंट सेक्शन में। आई आस्क हर, आई लेट यू नो। ऑल्सो
डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द देबीना बॉनर्जी शो। और गाड़ी चलाते हुए कहीं पे भी किधर भी आप ये कॉन्वर्सेशन सुन सकते या सुना सकते, बिकॉज इट इज़ अवेलेबल ऑन ऑल द लीडिंग ऑडियो प्लेटफॉर्म्स। तो आज टाटा बाय बाय बोलती हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो Thank you, मच। Davina. It was nice talking to you. You asked such good questions. Good for you. थैंक यू सो मच।